Okay, so today I have to discuss on Yaksha intermediate, which you are all known. Yaksha intermediate they are a species which are middle in between of reactant and also product, and that may exist. Okay, we can trap this. Okay, this is very important in point of view CSIR NET, GATE and also WB set along with PGT. Okay, so because you know that is the CSIR NET that should be held on more or less December, WB set also be held on more or less December, and GATE obviously from February. Okay, and not only that, there must be various type of PGT exams are also there, assistant professor exams are there. So there must be reaction media is very basic part. रिएक्शन मीडिया से आपका क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन अगर ना भी आए, इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको लगेगा. जैसे पिनाकोलो रिएचमेंट, देयर मस्ट बी कार्बोकैटायन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, there must be dinon phenol rearrangement, there must be carbocation stability is very much important. ओके, तो कार्बोकैटायन वाला बहुत सारा रिएक्शन होता है जहाँ पर में डिसाइडिंग फैक्टर होता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी. ओके, तो वो कार्बोकैटायन क्या है, वो इंटरमीडिएट है, राइट. Similarly, when decarboxylation you have to done, you have to see the carbon ion stability. So what is carbon ion? That is nothing but that is a intermediate, but that is a deciding factor. Okay. Next one, suppose benzene intermediate. There must be so many reaction is there. Suppose some reaction is given benzene, there must be one side fluorine is there, other side bromine is there. There must be magnesium incorporate and there must be the groups are eliminated and there must be benzene can be produced, and this benzene react with another furan, so produce this other reaction. This type of reaction that should be come in CSIR NET already. Okay, so already came. So there must be in DSR reaction benzene having so much influence. Okay, the benzene important. Nitrogen also important. Nitrogen important to produce isocyanate intermediate, and that is very much important for various type of reactions. Okay, and not only that, radical is also important. Radicals are basically two type: triplet, singlet. Okay, there must be the stability can be defined and their orientation can be defined. Okay, and on the basis of that there must be so many reactions can be going on. Okay, and last one, carbene. Obviously carbene important. Carbene, sometimes carbene is very important, like pyrrole to pyrimidine can be produced, chloropyrimidine, right. Similarly, indole to quinoline ring can be produced. The ring enlargement can be there by carbene. And not only that, there must be diamertamen reactions are there where carbene can be produced. So reaction and reaction product and the steps, the product prediction, and sometimes some basic common reactions are depend on intermediate. So intermediate is very much vital for that. Okay. Some reaction never be going on if the intermediate never be stable. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, वहाँ पर अगर आप ऐसा हो, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो और हीट हो, और आप ऐसे सोच लेना कि कार्बन डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन बैठा देंगे. ऐसा नहीं होता है. वहाँ पर आप डिकार्बोक्सिलेशन होने के पहले आपको ये भी चेक करना है जो डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद जो कार्बन आयन रहेगा वो स्टेबल होगा या नहीं होगा. अगर डिकार्बोक्सिलेशन के बाद वो कार्बन आयन जो बचेगा वो अगर स्टेबलाइज ना हो तो डिकार्बोक्सिलेशन भी नहीं होगा. Remember that. So that's why reaction intermediate, that is very much important. And also one thing you have to remember, some people think that is OH group that should be eliminated. That is not that. OH is a poor living group, so OH never be eliminate. There must be OH2 should be eliminated. Okay, there must be OH2 should be eliminated, and that can be there, that is H2 can be eliminated. Okay, so if in anyhow you get that is OH only is there, no hydrogen is there, H2 is no possibility H2 eliminate, but only there must OH is there, not eliminate the OH. सपोज कोई भी जगह अगर आप देखो कि OH है, सिर्फ OH है,
कोई आसपास में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर तो नहीं रिलीज होगा। OH के पास आप कोई ऐसा भी रिएजेंट नहीं दिया, ऐसा भी कोई सॉल्वेंट नहीं दिया कि OH हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके चला जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं, OH को लिविंग ग्रुप नहीं कंसिडर करना। ज़्यादातर केस में OH should not be a good living group. Okay, but when OH converting to OTS, OMS, OM, this type of reagent, there must be a possibility to being a good living group. Okay, so this is very important. Next one, but there must be always some exceptional cases are there. You have to consider, maybe there must be exceptional cases are there. So reaction intermediate, in an organic reaction, the main organic entity which is converted into a converted into a new one by the process of bond breaking and bond making steps. In the reaction there must be bond break should be there, bond make should be there. Okay, maybe concerted step, maybe consecutive step. Consecutive step when that bond breaking and bond making take place simultaneously, एक ही साथ होता है। और consecutive that means step by step, मे बी बॉन्ड ब्रेक होता है उसके बाद बॉन्ड मेक होता है, मे बी बॉन्ड मेक होता है उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव स्टेप। ओके, तो कॉन्सर्टिव स्टेप का एक अच्छा वाला एग्जांपल दे दो, क्या होगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जितना कुछ रिएक्शन आप पढ़ोगे सब कॉन्सर्टिव वाला होगा, ठीक है, राइट। SN1 जो होता है वहाँ पर आप सब कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन देखोगे, ठीक है। वहाँ पर एक ग्रुप लीव कर जाता है, उसके बाद कार्बोकैटायन होता है, वो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी होता है, उसके बाद अप्रोचिंग कोई भी ग्रुप आ जाता है, राइट। ओके, तो देयर मस्ट बी टू टर्म इज देयर, रिएक्टेंट एंड ऑल्सो पोटेंट। द स्पेसिस व्हिच शुड बी रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ न्यू कंपाउंड, न्यू मॉलिक्यूल, these species are called as reactant, and which should be formed, that are called potent. जो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके कोई न्यू कुछ प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट, और जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, नाउ व्हिच एंटिटी वी हैव टू यूज, द चेंज इज कॉल्ड एज रिएजेंट। अगर आप रिएक्टेंट को ऐसे ही आप दे दो तो रिएक्टेंट ऐसे रिएक्शन नहीं करने वाला, ठीक है, तो वहाँ पर आपको और भी कुछ देना पड़ेगा जिसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है। तो वो कैटलिस्ट नहीं होता है, कैटलिस्ट होता है जो खुद किसी में पार्टिसिपेट करता है पर खुद चेंज नहीं होता है, पर रिएजेंट चेंज होता है, रिएजेंट में चेंजेस आता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या कोई भी अगर कुछ चीज़ बोलो, रिएजेंट में चेंज होता है। रिएजेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो चीज़ आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। ओके, तो देयर मस्ट बी ए बेसिक डिफरेंस इज देयर, कैटलिस्ट एंड रिएजेंट। रिएजेंट शुड बी चेंज एंड कैटलिस्ट नेवर बी चेंज, ओके। And catalyst that should speed up the reaction, never incorporate in the reaction mechanism, but reagent that should be incorporate in reaction mechanism, ठीक है। कैटलिस्ट का काम होता है वो ऑल्टरनेट कोई एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ प्रोड्यूस करता है, तो जहाँ पर जितना एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा उससे कम एक्टिवेशन एनर्जी लेकर रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, ठीक है, एक्सीलरेट करता है पाथ को, पर रिएजेंट मैकेनिज्म तैयार करता है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क देखना। आप अगर कोई भी ऐसा जगह जाना चाहते हो, सपोज कोलकाता जाना चाहते हो, तो आप जिस मीडियम से जाओगे उसको आप बोल सकते हो रिएजेंट, ओके। पर अब अगर देखो कि कोई भी अगर आप गाड़ी से जाओ या कार से जाओ, कोई भी इंसान आपको मदद कर रहा है, या आप कोई भी GPS जो मैप होता है, गूगल मैप, वो आपको मदद कर रहा है कि यहाँ से जाने में शॉर्टकट मिलता है, तो उसको आप कैटलिस्ट बोल सकते हो, क्योंकि वो आपका प्रोसीड्योर को स्पीड अप कर रहा है, ठीक है। तो उसको आप कैटलिस्ट बोल सकते हो, और जो मीडियम आपको ले जा रहा है उसको आप रिएजेंट बोल सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट। So after the process of bond breaking, and intermediate entities are often formed and momentarily during the course of chemical reaction. They are very important.
अंडरस्टैंड दैट इज केमिकल रिएक्शन आर सेड टू बी रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो वहाँ पर एक बात सोचो, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इंटरमीडिएट एंटिटीज आर ऑफन फॉर्म। मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर केस में बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है। जैसे कार्बोकैटायन, कोई भी लिविंग ग्रुप चला गया उसके बाद कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हुआ। कोई भी होमोलाइटिकली कोई ग्रुप बाहर गया, इसलिए क्या हुआ, रेडिकल प्रोड्यूस हुआ। कोई भी आपका दो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव दो ग्रुप बाहर आ गया तो कार्बन प्रोड्यूस हुआ। ओके, एक बेंजीन के दोनों बगल साइड में अगर दो ग्रुप ऐसे ओरिएंट हो कि दोनों ग्रुप ही बाहर आ जाएगा तो एक बेंजाइन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू कोई भी एक स्पेसिस होता है जो रिएक्शन में आपका मिडिल का रोल काम करता है, उसको हम जब ट्रैप भी कर सकते हैं तो उसको हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिक्वायर ऑफ द नॉलेज ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन द सिस्टम एज अ होल एंड दिस इंक्लूड। तो ऑलवेज रिमेंबर जो रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी का एक बड़ा रोल होता है। ऑलवेज रिमेंबर द एनर्जी हैविंग द बिग रोल। व्हाई? बिकॉज that is, remember, always the system gets to be stabilized. Okay, so there must obviously the overall system's energy should be minimized, right? So there must be, if bond breaking is there, so there must be bond have to be break and you have to provide some energy. Okay, when bond formation is there, so that is a much strength can be induced, so that's why there must be some amount of energy should be released. So there must be, all over the process there must be energy phenomena is there. And that's why there must be two defined things is there. One is thermodynamics, other is kinetics. Thermodynamics based upon on the feasibility of the reaction going on or not. आपका रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके, और काइनेटिक्स होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितना अच्छा रेट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक रिएक्शन। जैसे आपका एक एग्जांपल दे दूँ, कहाँ पर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, दो रिएक्शन हो रहा है, सपोज एक में सिंपल SN2 हो रहा है, दूसरे में NGP हो रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो आप बोलो कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होगा? अगर आपका बेसिक पता होता है, अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स आप अगर देखा हुआ तो आप इजीली बोल सकोगे कि NGP ज़्यादा फास्टर होता है देन SN2। ठीक है, मैं बहुत सारा लेक्चर दिया है, और अगर आप बहुत सारा लेक्चर अगर आप देख लो तो आप क्लियर हो जाओगे कि SN2 का रेट NGP से कम होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि NGP में जो इंटरनल जो पार्टिसिपेशन होता है उसका रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, जो भी हो आपका NGP को आप ट्वाइस ऑफ SN2 भी बोल सकते हो, क्योंकि NGP में ट्वाइस नंबर ऑफ SN2 होने का चांस होता है। एक इंटरनल एक SN2 होता है और दूसरा आउटसाइडर कोई ग्रुप आकर फिर से SN2 कर सकता है, तो ओवरऑल रिटेंशन होता है बाय NGP। पर फिर भी NGP का रेट SN2 से ज़्यादा होता है। तो ये क्या है? ये रिलेटेड टू काइनेटिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के जो तीन चीज़ होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, entropy and enthalpy, three are very important to organic chemical reaction. Most of the people avoid this, but I always incorporate this because that give additional information, additional support. आप जब भी देखोगे कोई भी रिएक्शन में del G इक्वल टू नेगेटिव, वो चीज़ फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, वो हर वक्त फिजिबल होगा। और del G इक्वल टू del H माइनस T del S, यू नो del G इक्वल टू del H माइनस T del S, राइट। तो अगर del G नेगेटिव हो या नहीं हो आप कैसे जान सकते हो? del H को तो आपको पता होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन तो del H पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक तो del H नेगेटिव होता है। अगर आप एनर्जी दे दो तो del H पॉजिटिव होगा, अगर एनर्जी सिस्टम दे दे आपको तो वो नेगेटिव होगा। तो del H का वैल्यू आपको पता होगा, टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी फिक्स्ड, और del S का वैल्यू भी आपको पता होगा। अगर सिस्टम में ऐसा हो जाए, रैंडमनेस बढ़ जाए तो del H पॉजिटिव होगा, del S पॉजिटिव होगा, और रैंडमनेस अगर घट जाए तो del S शुड बी नेगेटिव, राइट। तो अगर रैंडमनेस कैसे बढ़ जाता है? अगर मोर देन आपका रिएक्टेंस से ज़्यादा आपका मोर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए,
या कोई भी गैस रिलीज हो जाए, या वह कोई ऐसा हो कि बहुत सारा स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर आ जाए, तो इस केस में टेलस पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि डी सेलुलर रिएक्शन, सपोज वहाँ पर दो प्रोडक्ट एक साथ मार्च होकर एक प्रोडक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर रैंडमनेस घट जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर डेलेस नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, पर आपको दोनों चीज़ ही आपको दिमाग में रखना है, डेलेच और डेलेस। अगर डेलेच और डेलेस का कॉम्बिनेशन में ऐसा हो जाए कि आपका अल्टीमेटली डेल जी गिव्स पेनाल्टी नेगेटिव हो जाए, तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा ही। ओके। और एक बात याद रखना, कभी कभी याद रखना कि डेलेस का पावर बहुत ज़्यादा होता है। कब? जब अच्छा खासा कोई गैस रिलीज हो रहा है, सोचो कोई रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, या फिर वाटर रिलीज हो रहा है, तो कोई भी स्टेबल एसिटिक एसिड रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पर एक फिजिबिलिटी का चांस होता है, क्योंकि डेलेस पॉजिटिव होता है। ओके। अगर कोई भी जगह आप देखो कि कोई भी सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है बाय डबल बॉन्ड ब्रेकिंग, जैसे डीएल सेलर रिएक्शन में होता है, डीएल सेलर रिएक्शन एंट्रोपिकली डिसफेवरेबल, बिकॉज वहाँ पर दो रिएक्टर मार्च होकर एक प्रोडक्ट हो रहा है, पर वहाँ पर एंथैल्पिकली दैट इज फेवरेबल। वाई? दो प्रोडक्ट जो मार्च हो रहा है, वहाँ पर दो लूजली बाउंडेड डबल बॉन्ड ब्रेक करके अच्छा खासा इक्विवेलेंट सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है। तो एंथैल्पिकली दैट इज़ मोर फेवरेबल, बट still entropically that is disfavorable, but due to combination of both of enthalpy and entropy we get ultimately del G negative. That's why this is visible. Okay. और काइनेटिक स्पीड ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट वन, यू हैव टू रिमेंबर सम रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज अ टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। एक ग्रुप बाहर आ जाएगा, दूसरा ग्रुप आ जाएगा उसके जगह में, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को याद करने के लिए आप बोल सकते हो रिप्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन, एडिशन रिएक्शन, वहाँ पर कोई भी ग्रुप ऐड होता है, जैसे हाइड्रोजनेशन, कोई भी एल्किन में हाइड्रोजन HH आ जाता है। ठीक है, वो सरफेस फेनोमेना होता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ज़्यादातर डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट वन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन वहाँ पर क्या होता है, ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट वन, रिएजमेंट, जैसे कार्बोकैटायन का रेडिकल का रिएजमेंट होता है, कोई भी रिएजमेंट जैसे होता है, फैस रिएजमेंट, क्लेसन रिएजमेंट, बार का मॉलिक्यूल का रिएजमेंट हो सकता है, कार्बोकैटायन का रिएजमेंट हो सकता है, पोजीशन का रिएजमेंट हो सकता है, तो उसको हम रिएजमेंट बोलते हैं। Then oxidation reduction, sometimes oxidation reduction, some group should be oxidized, some group that should be reduced, that is called overall oxidation reduction process. Next one, condensation, ऐसा होता है aldol condensation, Michael addition, you know, there must be spark in so many condensation, acyloin, so many condensation there, right? So there must ultimately what? The two molecules that should be merged to each other. And not always the two molecules when merged to each other, that is not always called condensation. Condensation is a different procedure. There must be two molecules can be merged to each other. There may be sometimes the small molecule that should be eliminated. Suppose water can be eliminated. So this type of things are called as condensation. And then polymerization, you know, in polymer chapter there must be so many polymerization can be there. Ethylene can be engaged to produce ultimately polyethylene, and you can say this is better called polyethylene. Okay. Pericyclic reaction, that is a different chapter, that is much more important, that is a concerted step mechanism, and there must be bond making and bond making that should be take place simultaneously. Okay. तो पर बहुत सारा रिएक्शन होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। लास्ट वन, रेडिकल मैकेनिज्म, जो SMI2 AIBN बहुत सारे रिएक्शन के टाइम होता है, ब्यूटाइल 3SNH, तो वहाँ पर क्या होता है, रेडिकल प्रोड्यूस होता है, वो चेन रिएक्शन भी कर सकता है, प्रोपगेशन भी कर सकता है, वो चेन टर्मिनेशन भी कर सकता है, या फिर कोई और भी रिएक्शन कर सकता है। ओके। Now there must be so many elementary classification. First one, substitute reaction, that is in which an atom or group of atoms are replaced another atom, that is called substitution. Suppose that is methyl chloride is there,
When NaOH is there, aqueous NaOH, that is a source of OH minus, and that is ultimately this OH minus attack on CH3. This is a one type of SN2 reaction. Ultimately methanol can be produced. Okay, so there must be also important thing, that is when OH is there, OH is not a good base. OH का साइज इतना कम होता है, तो जहाँ कभी कभी OH सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा करता है ज़्यादा देन एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है, हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टर होता है. जितना सारा आप रिएक्शन देखोगे वहाँ पर सबसे फास्ट होता है एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है, पर वहाँ पर एसिड बेस जो रिएक्शन होता है, बेस कौन सा बेस आपका ज़्यादा अच्छा होता है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक बेस और दूसरा नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस. याद रखना, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस जैसे DBU, DBN और ये जो टाइप का जो होता है वो और LDA, तो ये जो होता है ये सब स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, ये सिर्फ बेस की तरह काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता है. तो वो कोई भी जगह में जहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस कम होता है वहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या करता है, बेस की तरह काम करता है. ठीक है, पर जो आपका OH माइनस होता है वो उसका साइज़ इतना कम होता है, वो बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है. तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन होता है. ठीक है, तो अगर आपका ऐसा हो कॉन्सनट्रेटेड NaOH हो, वहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड NaOH हो, अब वहाँ पर Na+OH माइनस ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर OH माइनस का बहुत चांस होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करें. ठीक है, और जहाँ पर सोचो आपका थोड़ा बहुत पोलर नॉन पोलर मीडियम हो, वहाँ पर OH आपका थोड़ा कम न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है. तो वो बहुत सारा चीज़ में डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसलिए OH का जो मैटर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कब वो बेस की तरह काम करेगा और कब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा. ठीक है, ये हम बोलेंगे. अब तक A2 की समझ लो. उसके बाद एडिशन रिएक्शन दैट इज ए in which two molecules unite to produce a single molecule. Suppose Br2 and C6 is there, and this Br2 can be incorporated in ethylene, and that should produce ultimately this compound. Okay. Next one, elimination reaction. There must be the two atoms or groups that should remove from the single molecule, like this. When concentrated H2SO there, concentrated H2SO is there. Concentrated H2SO sometimes used for dehydration of water. Okay. वाटर रिलीज करने में काम करता है. देखो, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब द वाटर. ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट इज फॉर्म, इथिलीन कैन बी फॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट वन, and that is must be rearrangement reaction. There must be a rearrangement can be there, in which one or more isomeric compounds that should be formed. When the rearrangement is there, there must be the actual product along with some rearranged product can be produced. More than one product that should be produced in rearrangement reaction, like this, orthoethylphenol as well as para-ethylphenol. Okay. Oxidation reduction, there must be one group should be oxidized, other group should be reduced. This type of reaction can be going on. Like methanol, there must be -2 oxidation state, and ultimately there must oxidation means what? Oxidation state that should be increases. जब भी कोई oxidation state बढ़ जाए तो उसको हम oxidation बोलते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन का क्या क्या डिफिनेशन होगा, हाइड्रोजन रिमूवल, ऑक्सीजन अटैचमेंट, एंड ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट शुड बी इंक्रीजेस. तो हियर -2 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड देयर मस्ट बी +1 to -1, that means oxidation state decreases, that means reduction. Okay, and always remember in the reaction if one is oxidized, there should be another should be reduced. Next one, condensation. There must be two molecules that should unite to produce ultimately this type of compound. There must be a small molecule that is like water that should be maybe it, maybe loss, or sometimes never be loss also. Okay, that also be considered. Then polymerization, there must be so many small molecules that should be combined to each other, ultimately produce a bigger molecule, that is called polymerization. Okay.
Okay. Fragmentation, decomposition reaction also there. There must be, in which cases species that should be cleaves into two other species, that can also be happen. Okay. ठीक है. Next one, coupling reaction, in which that is two species unite to produce a single molecule. Like coupling reaction, बहुत सारा coupling reaction होता है. Stirling coupling, Yama coupling. Stirling coupling में SN reagent यूज होता है. आप याद रखना, अगर आप Stirling coupling बोलो, Stirling coupling, तो वहाँ पर आप यूज होता है SN. Yama coupling, Yama कपलिंग में SI यूज़ होता है. और आपका सुजुकी में यूज़ होता है आपका बोरोन और बोरोनिक एसिड जो होता है. और आपका क्या होता है, कुमाडा में मैग्नीशियम यूज़ होता है. मैग्नीशियम यूज़ होता है. हेक कपलिंग में पैराडियम यूज़ होता है. लास्ट वन, सोनोगासिया. सोनोगासिया दैट इज कॉपर यूज्ड होता है. ठीक है. तो स्टील में SN, यामा में SI, सुजुकी बोरोन और कुमाडा में मैग्नीशियम रिएजेंट, एंड हेक कपलिंग में पैराडियम एंड सोनोगासिया कॉपर. एंड दिस फुल्ली कीप अल्टीमेटली रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन रहेगा. ओके. एंड देन atom abstraction reaction, in which one atom hydrogen, that should be most of the cases abstract, can be there. Insertion reaction, that is carbon insertion. Okay, there must be one group that should incorporate on the groups. जैसे आपका होता है, आपका सपोज कोई भी डबल बॉन्ड हो, वहाँ पर कोई भी कार्बन इंटरमीडिएट हो, सपोज CH2, तो वहाँ पर साइक्लोप्रोपानेशन होता है, ऐसे रिएक्शन हो जाता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन रिएक्शन. Now, breaking of bond can be two-way. There must be homolytic or heterolytic. Homolytic, that is, means this bond that should be kept this way. That is equally contribution, equally big. So ultimately two radicals can be formed. Okay. Suppose this is a CH3 and this is a CH3 radical. Okay. But heterolytic, that means one bond that should be big this way. There must be one cation and one anion can be produced. Two type of species can be produced. Concerted mechanism, that means in which all bond forming and bond breaking steps that should be going on simultaneously. एक ही साथ bond break और bond make होता है. A stepwise reaction, there must be one bond breaking and bond making occur consecutively. That is step by step. Maybe one bond breaking first and then bond making first, bond breaking first then bond making, और बॉन्ड मेकिंग फर्स्ट देन बॉन्ड ब्रेकिंग, बट एक साथ नहीं होता है. उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव स्टेप मैकेनिज्म और स्टेप वाइज रिएक्शन. ओके. और कॉन्सर्टेड स्टेप में दोनों एक ही साथ होता है. ठीक है. कॉन्सर्टेड का जो एग्जाम्पल होता है उसको हम बोलते हैं पेरीसाइक्लिक, और स्टेप वाइज को हम बोल सकते हैं SN2. ठीक है. तो इसको हम SN2 बोल सकते हैं. Now we have to go, that is how radical can be produced. First one, by the fragmentation or decomposition of the radical. Like there must be a decarboxylation is there this way. Okay, so there must be the radical is produced and CO2 that should be eliminated. That's why it is called decarboxylation also. Next one, by the abstraction of an atom. Like this Cl radical abstract the hydrogen and there must be CH3 radical can be produced. Along with HCl can be developed. And this HCl developed, that's why this is a del S is positive, and that is HCl is a stable gas, you know, and gaseous series, so that's why this is more favorable. And there must be CO2 is gas, that's why del S is much positive, randomness highly increased, so that's why this is a favorable. Okay. जब भी आप देखोगे कोई भी गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन या HCl या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर चांस होता है रिएक्शन फेवरेबल होने का, क्योंकि रैंडमनेस बहुत बढ़ जाता है. आपका गैस का रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होता है देन लिक्विड सॉलिड. गैस का रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होता है. गैस del S
for gas is much greater than del S solid and liquid and del S सॉलिड एक ही जैसा होता है, पर गैस का रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी रिएक्शन में अगर आपका कोई गैस रिलीज हो रहा है तो वो रिएक्शन फेवरेबल होगा, चांस होता है। नेक्स्ट वन, बाय द एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल, तो दिस फ्री सपोज दिस बी आर रेडिकल अटैक इन दैट साइड एंड देयर मस्ट बी दिस रेडिकल कैन बी प्रोड्यूस्ड। ओके, by the rearrangement of the reaction also, this suppose this CH radical can be CSC go this side and there must be here this radical can be produced. Okay, so up to this and thank you, and next day I will start again from actual reaction intermediate, and not only that, next day I will start with the PIQ question solve also. Okay, so that is very important. Okay, so thank you, and I have to start from beginning from due to because जो PBS का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही टफ आया था, तो कहाँ से क्वेश्चन आ जाए हम बोल नहीं सकते। अब हमको एडवांस लेवल में पढ़ना होगा, तो इसलिए CSIR नेट और गेट का जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन लिया वो एकदम जीरो से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उसके साथ तो PGT है, PGT का तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट होता है, और WB सेट में भी बेसिक का कॉन्सेप्ट आता है। इन डेप्थ लर्निंग हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सरफेस लर्निंग को भूल जाना है, इन डेप्थ लर्निंग रखता है। So thank you so much, and please subscribe Upper Chemistry YouTube, and also in Instagram Upper Chemistry is there, Thread is there, in Facebook Upper Chemistry is there, Upper Chemistry group is there, and Apurva Consulted. You can find out, search it and follow it. Okay, so thank you so much.